काफी लोगों को अपनी मतलब मुलाकात हो चुकी है, थोड़ा इंट्रोडक्शन हो चुका है, बट मैं देख रहा हूँ काफी लोग दूसरे भी हैं जिन लोगों को अपने फर्स्ट टाइम मैं मिल रहा हूँ. ओके, तो सबसे पहले आई एम शैलेश खवानी. ओके, और आई हैव बीन अपॉइंटेड हियर एज द HR हेड. ठीक है, एंड मेरा बैकग्राउंड में सो बेसिकली क्या है कि आई हैव गॉट 25+ years ऑफ एक्सपीरियंस विद द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री से मतलब कैसे है कि मैं IT सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह से मतलब जुड़ा हुआ था. ओके, तो उसकी वजह से मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स और मैनेजमेंट जो बोल सकते हैं ना बहुत सारी इंडस्ट्रीज का मतलब मैं आई मीन ऑन अ वेरी क्लोज लेवल अगर देखेंगे तो 350+ इंडस्ट्रीज से के मैनेजमेंट से और सॉफ्टवेयर में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होने की वजह से क्या है कि ये बहुत अच्छा मतलब एक अपॉर्चुनिटी था टू स्टडी द डिफरेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स एज वेल एज मोर देन 350+ ऑर्गेनाइजेशंस का स्ट्रक्चर, सेटअप, सोशल कल्चर, ये सारी चीजों का एक एक्सपोजर मिला है. ओके, और अभी जो है मैं राइट नाउ आई एम अदरवाइज कंसल्टेंट. ओके, कंसल्टेंट जब आई मीन डीलिंग इन और इन्वॉल्व विद IT, HR and management. Okay, so this is my introduction basically, and ये structures वगैरह और system जानने की वजह से अच्छा इससे पहले just I just started this this new phase of being a professional consultant. Okay, only since April. Okay, इससे पहले I was the CEO, the group CEO with Luthra Group. Luthra Group जो है मतलब they are into multi verticals and multi locations. They are into textiles since long back, 30+ years, and they are also please. Okay, please. Okay, so Luthra Group is into textiles first. बाद में they went into infrastructure. Okay, and then they gone into environment sector also. Hazardous waste management site वगैरह सुना होगा सभी लोगों ने. Okay, lately last year or something they got into trouble with the legal aspects, and so they were in kind of a bad state, right? So I was their group CEO. Okay, taking care of all the internal aspects, right? That is IT, HR, strategic management and all, and that gave me a fantastic experience of more than 5 years of hands-on working with the group. Okay, so this is about me. Okay, अब before we start, generally I would like to interact with the audience. Audience में तो एक थोड़ा सा brief introduction about everyone is what I will like to get from you guys, so that क्या है कि अपने मैं समझ सकता हूँ कि कौन सी ऑडियंस है और उनका प्रोफाइल क्या है, तो उस हिसाब से अच्छा मेरा जो सेशंस रहेंगे टिपिकली वो काफी एक स्ट्रक्चर रहेगा. ओके, बट आई गिव एग्जांपल्स एंड ऑल दैट बेस्ड ऑन द ऑडियंस. ठीक है, ऑडियंस को देखते ही वो कर देता हूँ, तो इसीलिए क्या ऑडियंस का जानना थोड़ा जरूरी है. ओके, सो ऑल दोज हु हैव नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड टू मी और अपने पहले नहीं मिले हुए हैं उनसे मैं स्टार्ट करना चाहूंगा. ओके, सो एनीवन कैन स्टार्ट ऑफ introducing himself. What I want is your name, your department in which you are working, association with the company, how long, and your designation, department and designation, and how long you have been associated with the group, right? And if required, your qualification, educational qualification, right? So just a background aa jaye. Okay, so start. Who will start first? Great. I'm Sarfraz Lambe. Okay. Basically, I'm from Bombay. I have completed my education, means graduation from Mumbai University. Okay. And I'm working with this company since last about 2 years. Great. And I'm also handling a department, KP Personal Care Limited, which is the division of KP Group. Division of KP Group, KP Personal Care, right? Personal The one in Nanpura or something, right? That exactly. Okay, great. Thank you. Okay, fine, great. Very good. I really appreciated the spirit of this. That is very important. You have to. Now, this is also one of the lessons we have to see. अपने क्या होता है अपॉर्चुनिटी मिलती है. So you had. Everyone has the opportunity. So it's one who grabs this opportunity
is the one who stands out. Like, okay, so जैसे मैंने option दिया, you know, so you should be generally the first one should be, you know, to grab the opportunity. Okay, so good. I really appreciate that. Yeah, please. Yeah. My name is Dipesh Rajput. Dipesh Rajput. Dipesh. Dipesh Rajput. Dipesh Rajput. Okay, good. केपी के साथ 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ. 1.5 साल पहले से. केपी पर्सनल केयर में था. Okay. अभी रिसेंटली अभी 1 महीने से मैं केपी डिपार्टमेंट केपी नहीं, डिपार्टमेंट अकाउंट्स है. मैं डेवलपमेंट मैनेजर में था पहले केपी पर्सनल केयर में. ओके. रिसेंटली अभी जो मैं मेरा डाइवर्जन हुआ है केपीआई ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में. हाँ. उसमें मैं जनरल ऑफिसर के रैंक पे अभी हूँ. Zonal officer. So you are looking at sales also. Great. मार्केटिंग का है मेरा. Okay. और 1.5 साल से मैं हूँ कंपनी के साथ. 1.5 साल से. उससे पहले का एक्सपीरियंस भी अगर बताएंगे तो नंबर ऑफ इयर्स और व्हाटएवर. उससे पहले मैं इंश्योरेंस फील्ड में था. Okay. एज अ मार्केटिंग मैनेजर. कितने साल का एक्सपीरियंस? पिछले सुनो एजेंट एडवाइजर में मैंने 8 साल का एक्सपीरियंस लिया हुआ है. 8 साल. ओके. फाइनेंशियल एडवाइजर का मेरा काम था. म्यूचुअल फंड वगैरह मेरा काम था. वेरी गुड. थैंक यू. या. जावेद पटेल. Right. केपी के साथ 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ. 5 साल से. ओके. लास्ट 4 मंथ से मैं मार्केटिंग देख रहा हूँ जिसमें जोनल ऑफिसर के पोस्ट पे हूँ. ओके. इससे पहले मैं बिलिंग और कलेक्शन का काम दे रहा था. अभी क्या कर रहे हैं? यू सेड मार्केटिंग जोनल ऑफिसर. अच्छा, ZO. ओके. योर नेम यू सेड? जावेद पटेल. जावेद पटेल. ओके. ग्रेट. कौन सा एरिया हैंडल कर रहे हो? भरूच अंकलेश्वर बारडोली नवसारी. भरूच अंकलेश्वर बारडोली. एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ सूरत मीनिंग आई थिंक अथवा वो एरिया है पार्ले पॉइंट. ओके. ग्रेट. ये सब आप लोगों के नाम जो है ना मैंने सब सुने हुए हैं. कैसे सुने हुए हैं कि हम लोगों ने आप लोग अपनी कंपनी का ऑर्गेनोग्राम बनाया हुआ है. ठीक है ना. सो दैट्स व्हाई आई कैन प्लेस यू. ओके. ये दीपेश है. सो यू आर दीपेश, राइट? ओके. ग्रेट. गुड. अच्छा, बाय द वे, जैसे मैं अभी नाम पूछ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ये है इट इज पॉसिबल दैट नेक्स्ट टाइम वी मीट आई माइट स्टिल नॉट रिकलेक्ट योर नेम. ओके. सो यू विल हैव टू एक्सक्यूज मी फॉर दैट, क्योंकि ये क्या ग्रुप में आ रहा है. ओके. बट 2-3 इंटरेक्शन के बाद में आई रिमेम्बर. सो यू नो डोंट फील अरे यार मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया सबके बीच में और ये और सर फिर भी याद नहीं रखते. तो ऐसा प्लीज डोंट फील दैट. क्या प्लीज. क्या गुड. सर मेरा नाम महेश वाणकर है. मैं गोजरा से हूँ. ओके. मैं 12th पास हूँ. Okay. केपी ग्रुप के साथ सोलारिज्म में मैं 8 महीने से जुड़ा हूँ. 8 महीने से. ओके. कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में एज ए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव पोस्ट. वेरी गुड. ओके. और कस्टमर केयर मतलब बैठते यहीं पर ही हो? रिसेप्शन पे. यहीं पर ही बैठते. ओके. और इससे पहले का एक्सपीरियंस? सर मैं प्रतिभा ग्रुप में था. प्रतिभा ग्रुप में एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव. कस्टमर केयर. ओके. ग्रेट. गुड. या. मेरा नाम मुबिन शेख है. मुबिन शेख. ओके. अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ. ओके. 2 साल से केपी ग्रुप से जुड़ा. ओके. डेजिग्नेशन है कैशियर. कैशियर. ओके. मुबिन शेख, राइट? कैशियर यहीं पर ही बैठते. हाँ जी. ओके. लास्ट 2 साल से है. फाइन. गुड. ओके. यस. मेरा नाम प्रदेश पटेल है. डिपार्टमेंट में हूँ. कौन सा पटेल? प्रदेश पटेल. प्रज्ञेश. ओके. गुड. हाँ. 3 महीने से ही ज्वाइन हुआ. 3 महीने से. ओके. न्यू है. इससे पहले का एक्सपीरियंस? सर योगी आर्किटेक्ट. योगी आर्किटेक्ट. कितने टाइम का है? 6 महीने. 6 महीने वहां पर. और फ्रेश है मतलब उससे पहले फ्रेश थे. ओके. वेरी गुड. ठीक है. क्या? सर मेरा नाम मुख्तियार मलिक है. केपी के साथ 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ. ओके. मैं अभी ऑप्टिकल फाइबर का जो नेटवर्क चलता है OFC डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट. उसके अंदर कोऑर्डिनेशन करता हूँ. ओके. मुख्तियार मलिक. मलिक. ओके. ग्रेट. वेरी गुड. My name is Kanani Satish. मैं IT सतीश कन्हानी. राइट. ओके. IT admin के पोस्ट पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ. ओके. लास्ट 1 साल से. लास्ट 1 साल से. ओके. IT एडमिन. एंड उससे पहले उससे पहले ISP कंपनी में काम करता था. ISP. राइट. ओके. ग्रेट. गुड. My name is Sanket Mule. I'm from Sanket? Mule. मुले. Yeah. ओके. I'm from Mumbai basically. Okay. And I passed my 12th and right now I'm working in PCN, KP PCN since one month. Since 1 month. Okay. So you joined fresh. Yeah. Very good. Right. Good. Yeah. मेरा नाम राजकुमार मिश्रा. राजकुमार मिश्रा. ओके. केपी पर्सनल केयर में हूँ. पर्सनल केयर. गए 8 ओके. महीने से. गए 8 महीने से. ओके. गुड. लॉजिस्टिक में. लॉजिस्टिक्स में. राइट. गुड. Who else? Yeah. My name is Sachin Parmar. Sachin Parmar. Parmar. I have Okay. completed my MBA from Gujarat Technological University. I have recently joined in accounts department.
KP. अच्छा, Last 2 months. अकाउंट डिपार्टमेंट लास्ट 2 मंथ से. ओके ओके ग्रेट. हाँ 5 मिनट में आया हूँ. हाँ हाँ हाँ. ओके who else? Yeah. So myself Bushra Ansari. I'm from Pardon? Bushra Ansari. Bushra Ansari. Okay. I'm from Bhopal और मैं KP group में last 2 months हूँ. Last 2 months. Yeah, as a back office executive. As a back officer. Right, right. And your background before that or education? सर मेरा भोपाल से मैंने MA किया ज्योग्राफी में. MA? और मुझे यस सर मैं 2 साल से HDFC बैंक में थी. 2 साल से HDFC बैंक. Okay, okay, good. Right. Good. Yes, who else? Sir, myself, Ryan Intiasek. I completed graduation from Vietnam South Gujarat University. Okay. And I was joined in as a logistic department as a documentation in charge. Okay. Then I went to Behring. I was there in Bloomberg LP division, Mhm. field service support engineer. Okay. And then I came back to India. And from 2009 to till date, Hmm. I'm still in KP. 2009. Okay. I Okay. appointed as an HR executive, Uh-huh. but my Okay. field is in IT. Okay. And so I transferred after 6 months as an IT. Okay. And then right now I'm promoted as a PA to C from last 2.5 years. Very good. Very good. 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 See, now the purpose of introduction is not just me, okay? Actually, The entire group also. We are also surprising. We are just today we know each other. Yes, that is. See, ये बहुत बार ये होता है, you know, अपने आसपास में होते हैं ये. We take for granted everyone, okay? Now when you know such kind of an introduction, अरे यार ये इसने ये किया, अच्छा ये इतना experience है, you know, many things which in the day to day we don't do it, you know. That's why this exercise I'm making you stand up so that everyone, you know, is able to see and know about these aspects. No, these are real important aspects, you know. So yeah, please, yeah. Myself Ramesh Kasli. I had completed MLW Master of Labour Welfare from Veer Nirmal South Gujarat University in 2008. Okay. Then I was joined Drew Group as a HR executive. I had worked 2 years in Drew Group. Then I was joined KP. Through that motors and Yeah. okay, okay, right. Then I was joined KP Group, and I'm working since last 3 years. Last 2 years, 3 years 3 years. Okay, 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 great. as a HR executive. अच्छा, great, great. Yeah. और कौन रह गया? Morning, please. Yes. I'm Jakub Raje. Okay. I'm working with KP since 10 years. Yes. I'm Okay. working as a VP, Okay. taking care of our factories. Okay. 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 Great. Great. Yeah, I am Sailesh Kawani. I'm heading the HR right now. Yes, just now I've seen your mail, I think. Yes. Okay, translated okay. to me. Yeah, that's right. Great. Good. Right. Who else is left? Everyone? Okay, great. ठीक है. So now, अच्छा, anyone else? ये भी आ रहे हैं, boss? नहीं सर नहीं. Boss नहीं आ रहे, right? Okay, so we start ना. कभी कोई नहीं, हाँ? Good. So now सबसे पहले, I would like to know कि how many of you guys have got mobiles? Can you show me the model? हाँ, good, okay. आपका मॉडल, हाँ, गुड, ओके. नाउ आई थिंक सभी मॉडल्स के अंदर देयर इज अ प्रोफाइल चेंज मोड, ओके. उसको सिलेक्ट करके उसको साइलेंट में डाल, ठीक है. नाउ I think that must have done. Majority people must have done. I really appreciate that. But many times क्या होता है, you know, generally, you know, सबको बोलते हैं I want a mobile on silent and everything okay, everything is good. बाद में एक सडनली टी करके कहीं पर रिंग होगा और वो रिंग से मेरे को उतना नहीं डिस्टर्ब होता है जितना सबकी मुंडी पीछे घूमती है. कौन है जिसने मोबाइल साइलेंट में नहीं डाला, यू नो. तो अभी हाथ में है, निकाला है, तो फिर जिसने नहीं डाला होगा वो डाल देगा, राइट. सो ओके, नाउ बिफोर वी स्टार्ट, यू नो, सर्टेन ग्राउंड रूल्स आई लाइक टू, यू नो, एस्टैब्लिश, यू नो, कि देखो ये जो भी अपने करने वाले हैं आज सेशन देके, इट विल बी ऑन टाइम मैनेजमेंट एज इट सेज. नाउ ये टाइम मैनेजमेंट का जो सेशन रहेगा, और मेरे जितने भी सेशन होंगे, वी विल बी हैविंग अ सीरीज ऑफ सेशंस, ओके. और ये जो सेशन जो है ना, व्हाट आई इंटेंड, इट्स नॉट समथिंग अ लेक्चर और समथिंग, ओके. आई डोंट लाइक टू गिव दैट वो लेक्चर वगैरह नहीं. ये जो है ये इट शुड बी लाइक अ इंटरैक्टिव सेशन, ओके. इंटरैक्टिव इन द सेंस, इंटरैक्शन में क्या होता है कि जैसे मैं भी आपसे डिस्कस करता हूँ या कोई सवाल पूछता हूँ, बिल्कुल बेझिझक
होकर you should answer or you should tell or you should share whatever is your viewpoint. Okay. Now the reason मैं ये बता रहा हूँ is that क्या होता है कि जैसे I'm a seasoned, I would say, trainer. Okay, seasoned in the sense बहुत सालों से, और ये जो भी सेशंस रहेंगे सी they will be very simple and कुछ जैसा शायद स्क्रीन के ऊपर बहुत हाई फाई ऐसे बहुत सारे प्रेजेंटेशंस, तो मेरा उसके ऊपर फोकस नहीं रहता है. बट मैं ये सेशन पर जो रहेगा ना, जैसे आगे जाएंगे ना, अगले स्लाइड्स जैसे देखेंगे ना, उसमें स्लाइड्स में क्या सिर्फ आउटलाइन पॉइंट्स नोट करता हूं. ओके, एंड बेस्ड ऑन द आउटलाइन पॉइंट्स आई एक्चुअली क्रिएट द सेशन लाइव. ओके, नाउ ये लाइव क्रिएशन से ये रहता है कि उसका रेलेवेंस टू द ऑडियंस बहुत ज्यादा होगा. मतलब सपोजिंग मैंने एक प्लान करके आया और मैं रट्टा मार के आया और धका धक बोलते जाऊंगा, तो क्या होगा, आधे लोगों को ये सेशन ऊपर लगेगा, सर के ऊपर जाने वाला, आधे लोगों को ये सब तो जानता हूं. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन इज ऑलमोस्ट एवरेज में ओनली 25% ऑफ द पीपल विल रियली अप्रिशिएट द सेशन. देखो, कोई भी लर्निंग और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, बराबर है, तो क्या होगा, उसका रेलेवेंस कब होगा, व्हेन देयर इज समथिंग व्हिच यू आर लर्निंग फ्रॉम इट. नहीं तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है. और जो चीज आपको अप्लाई करती है, तो एग्जाम्पल्स होंगे, ये होंगे, वो प्रोबेबली जब आप शेयरिंग करेंगे ना, तो दैट टाइम आई विल बी एबल टू थ्रो लाइट ऑन इट कि भाई ये है. आर यू गेटिंग दैट? तो मेरा इंसिस्टेंस रहेगा कि बिल्कुल फील फ्री, एब्सोल्यूट फ्री, कुछ भी जो है आप शेयरिंग करिए, और शेयरिंग करके उसके ऊपर से दूसरे को भी एक बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू लर्न फ्रॉम दैट शेयरिंग, एज वेल एज मैं आपको उसके ऊपर से रेलेवेंस दिखा सकता हूं कि अपने जो टॉपिक के लिए ये क्या उसका मीनिंग है. सो एग्जाम्पल्स विल गेट इट फ्रॉम द ऑडियंस एज वेल एज मैं, क्योंकि मैं भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा जानता नहीं हूं. ओके, नहीं तो क्या हुआ, प्रॉब्लम मैं आफ्टर सर्टेन टाइम आई माइट टेल कि देखो तुम्हारा बिहेवियर ये ऐसा है, एंड देन दिस इज वेयर इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, something like that, but I don't know right now. So that is why I want you guys to share, okay? And learning में मैं देखूंगा आपकी बॉडी लैंग्वेज की भाई समझ में नहीं आ रही है, तो मैं थोड़ा और नीचे जाऊंगा, और बहुत इसे बोर हो रहे हैं तो मतलब फिर थोड़ा हायर जाएंगे, राइट? सो दैट इज व्हाई दैट शेयरिंग एंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अब दूसरा, और व्हाट वी से एंड लर्न यहाँ पर जो है, इट इज गोइंग टू बी वेरी कॉन्फिडेंशियल एंड विद इन द ग्रुप ओनली. आई मीन विद इन दिस ग्रुप. ओके, दिस इज वेयर यू विल हैव टू प्रॉमिस मी कि there should not be, see there are many examples. See, अपने ये organization को we are planning to take it above that level what it is right now. That's why we have been appointed, right? हम लोग का मकसद ही यही है कि आज जो KP group है, okay, we have to take it to newer heights. This is the whole purpose of this, right? तो अब क्या होगा? There are definitely defects. There are definitely बोल सकते हैं gaps. There are certain areas which are not मेकिंग एवरीवन कंफर्टेबल. और अगर आप कंफर्ट जोन में नहीं हैं और आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो विल यू बी द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्टिविटी. सपोज आपकी शर्ट आपको चुभ रही है, ओके, और आपको एक बैलेंस शीट को या एक रिकंसिलेशन करना है, तो क्या होगा, आपका क्या परफॉर्मेंस उसमें बेस्ट होगा? घड़ी घड़ी आपको ये है, यू आर नॉट कंफर्टेबल, समथिंग इज डिस्टर्बिंग. ओके, इसी टाइप से अपने हर एस्पेक्ट में लाइफ के, मतलब वर्किंग लाइफ में भी कोई चीजें ऐसी हैं खुजती है. आपके बॉस ने कोई ऐसे कटाक्ष मार दिया, कटाक्ष यानी दैट टॉन्ट, ओके, ये टॉन्ट मार दिया, तो बचपन से ही ऐसा है, और तेरा काम, हर काम ऐसा है, और समथिंग. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, तुम उधर काम तो कर रहे हो, लेकिन वो अरे यार ये क्यों बोल रहे, ये क्यों, आओ आपका एफिशिएंसी कहां है? योर एफिशिएंसी इज ड्रॉप टू एनीथिंग. ओके, नो दिस, जो सामने वाले को ये रियलाइज भी नहीं हुआ कि यार ये इससे ये बोलकर, देखो बोलने का मकसद क्या रहता है कि आदमी इंप्रूव हो जाए, ही ट्राइज टू डू और नॉट डू सर्टेन थिंग्स. ओके, तो वो उसका तो इंटेंशन था क्लीन कि यार इसको बोलूंगा तो कम से कम चीजें इंप्रूव होगी एंड हिज परफॉर्मेंस बिकम बेटर. बट एज अ रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट हैपेंड, एक्चुअली परफॉर्मेंस डाउन हुई. ओके, सो दिस हैपेंस एवरीवेयर विद एवरी ह्यूमन बीइंग. ओके, अभी अपना जो मकसद है कि वी हैव टू रियली सी टू इट दैट वी डू नॉट डू सच थिंग्स एंड डू थिंग्स व्हिच आर मेकिंग पीपल ब्रिंग आउट द बेस्ट इन देम. Okay, this is a whole पूरा अपना philosophy रहेगा of this trainings and everything. Okay, so the whole
पर्पस इटसेल्फ इज दैट देयर आर गैप्स, ये सबको माइंड करना है, सबको माइंड में रखना है. ओके अच्छा, जब मैं बोल रहा हूँ बॉस ऐसा है या बॉस में ये प्रॉब्लम है, तो ज्यादातर सब लोग क्या देखेंगे, याकूब भाई ऐसा करते या ये आदमी ऐसा करते या एक आदमी का. ओके वो ज्यादातर क्या होता है, वो अपने बॉस के ऊपर ही भाई फारूक भाई ऐसा करते हैं या वो अपना बॉस को ही देखते हैं. ओके बट एट द सेम टाइम ही डज नॉट सी कि मैं भी तो किसी ना किसी का बॉस हूं. See, mostly you are always interacting with people, right? तो आपके अंडर में भी ट्री है, 2 आदमी 3 आदमी जो आपसे रिपोर्ट लेते हैं, आपको रिपोर्ट देते हैं और आपको यू नो इंटरेक्ट करते हैं, फीडबैक देते हैं. तो जनरली क्या है, लुक एट इट योरसेल्फ. व्हेन आई से मोस्ट ऑफ द बॉसेस हैव दिस हैबिट. ओके तो अब क्या ये मत देखना कि मेरे बॉस में ये हैबिट है क्या. What you would be saying is, seeing it or being present or being aware is that मैं एज अ बॉस हूं तो क्या ये मेरे में हैबिट है क्या. नॉर्मली अपने को ये बहुत अच्छा लगता है कि वो हैबिट्स या जो प्रॉब्लम्स है जो वो है वो सामने वाले में है. ओके तो कीप दिस इन माइंड. ओके व्हाटएवर जो अपने डिस्कस करेंगे आज नहीं, इवन फ्यूचर में भी, सो ये सारा इज नॉट विथ रिस्पेक्ट टू दैट अदर पर्सन. द चेंज जो लाना है वो खुद में लाना है. ओके अदर पर्सन यू डोंट बॉदर. If you bring the change in yourself, okay, then automatically the world becomes a better place. Okay, you will find that. ठीक है ना. तो ये एस्पेक्ट को ये अपने कॉन्स्टेंटली माइंड में रखना है. ओके एंड ये इसीलिए बोल रहा हूँ कि व्हेन यू आर शेयरिंग, ओके सपोजिंग आपको मतलब फारूक भाई के बारे में कोई चीज नेगेटिव लग रही है, सो डोंट हेजिटेट, एक्सप्रेस दैट. इट्स नॉट वन पर्सन दैट इज बैड. ओके व्हेनेवर वी टॉक, इट्स नॉट द पर्सन दैट इज द प्रॉब्लम. ओके इट इज द situation. This particular action or his particular characteristic. सेब लेते हैं ना, ओके उसमें एक पर्टिकुलर यहाँ पर एक दाग लगा हुआ है, तो क्या पूरा सेब तो खराब नहीं है ना. और प्रैक्टिकली आप अगर देखेंगे ना 100% परफेक्ट सेब तुमको कहीं पर भी वर्ल्ड में नहीं मिलेगा, कितना भी ऊपर से दिखता भी हो परफेक्ट, बट अगर उसके अंदर प्रॉपर माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना तो कहीं ना कहीं डिफेक्ट लगेगा. तो सेम थिंग, human being is much more complicated than the physical thing like apple. तो हर human being में imperfection guaranteed है. okay तो we are not looking as जो अपना जो defects है या जो अपने gaps है as a negative thing but as a undesirable thing. okay और वो undesirable thing को अगर improve कर सकते हैं. बहुत बार मैं aware नहीं था, जैसे मैं ऐसे चल रहा okay और किसी का पाँव था, मेरे को पता नहीं चला, मैं उसके पाँव के ऊपर पाँव डाल के चला गया. अब इसको क्या हुआ, पेन हुआ. आई वॉज नॉट इवन अवेयर कि मेरे उस तरह से चलने से इसको दर्द हुआ. ओके एंड आई कंटिन्यू वॉकिंग दैट वे. ओके तो बहुत बार क्या होता है, जो आदमी जो गलत करता है ही इज नॉट इवन अवेयर अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट और द प्रॉब्लम एस्पेक्ट और द एरिया. जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि मैं टॉन्ट दिया और वो टॉन्ट दिया और वो 2 दिन तक रात को गया, वो सोया नहीं, बॉस ने ये बोला, इसका मतलब क्या क्या वो निकाल देगा, मेरे को निकाल देगा तो मैं दूसरी नौकरी ढूंढनी चालू कर दूं. ऐसे सारे थॉट्स बिल्डअप हो जाते हैं और फिर उसका ध्यान इसमें नहीं लगता है और फिर वही चीज जो बॉस ने कभी इंटेंशन नहीं रखा था कि भाई इसको निकाल देना है, फिर देखेगा ये क्या आदमी ये परफॉर्म कर रहा ही नहीं है और हर बार ये सब ध्यान इधर उधर होता है, ये होता है, देन निकालने की बारी आई. सो समथिंग वी एक्चुअली क्रिएट दैट इवेंट व्हिच वी हैड नेवर, व्हिच ही हैड नॉट इंटेंडेड और एनीवन हैड नॉट इंटेंडेड, राइट. सो दिस इज द बेसिक बैकग्राउंड व्हिच आई विल से. इट शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल लाइवली, ओके इंटरेक्टिव. जितना इंटरेक्ट करेंगे उतना आप लोगों को ही मजा आएगा. ओके इवन आई विल लर्न इन दैट एंड इट्स एब्सोल्युटली, आई मीन यू शुड फील फ्री टू शेयर एंड डिस्कस. ओके एंड एक चीज रखना कि जो तुमको प्रॉब्लम हो रहा है ना 80% चांस है कि दूसरों को भी प्रॉब्लम हो रहा होगा. ओके ओनली थिंग क्या है कि कोई बोलता नहीं है. तो व्हेन इट कम्स आउट ना एंड उसका अगर सोल्यूशन होगा या डिस्कशन होगा या डिबेट होगा और उसको सोल्यूशन मिलेगा तो दूसरे लोगों को भी सोल्यूशन मिलेगा. अपने को लग रहा है कि मेरी इंग्लिश खराब है या तो मैं बोलूंगा तो ये लग जाएगा, लेकिन 80% लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि मेरी इंग्लिश खराब है. तो जब ऑल आर इन द सेम प्लेटफॉर्म तो कोई खराब लगने वाला या ये नहीं है. ठीक है ना. ओके सो नाउ वी स्टार्ट विद द मेन टॉपिक टुडे. आज का जो मेन टॉपिक है वो है
टाइम मैनेजमेंट. अच्छा, नाउ इज व्हाटएवर जो मैंने ये बताया था ये बैकग्राउंड है, ये जनरल रहेगा एवरी सेशन के लिए अपने यही रखेंगे, मतलब जो इंटरेक्शंस एंड ऑल दिस एस्पेक्ट्स, राइट. फ्री फॉर्म डिस्कशन इज व्हाट विल लुक एट, नो. ओके, सो टुडे का आज का टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट. ओके, नाउ टाइम मैनेजमेंट में आज मैं 2 एरियाज कवर करना चाहूंगा. एक तो कंसेप्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट. ओके, सभी लोगों से, मतलब आप लोगों ने बचपन से सुनते आया होगा, यू नो, कि टाइम मैनेजमेंट सभी लोग अपने को रियली यू नो बम्बार्ड करते हैं, तेरा टाइम मैनेजमेंट ही खराब है, राइट फ्रॉम पेरेंट्स से लेकर बॉसेस से लेकर एवरीवेयर, यू नो, सब सुनते आ रहे. ओके, तो पहले क्या, व्हाट एग्जैक्टली कंसेप्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट क्या है, ये अपने को एक बार समझ लेना है. ओके, एंड देन ये टाइम मैनेजमेंट को किस तरह से इंप्रूव करते हैं, या किस तरह से उसमें बहुत सारे टूल्स आते हैं, यू नो, हाउ टू इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट. बहुत सारे टूल्स आते हैं. ये एक्चुअली एक सीरीज नहीं है, ये मतलब एक सीरीज है एक्चुअली. ये टाइम मैनेजमेंट का जो टॉक्स है सीरीज. ओके, सीरीज मीन्स 1 2 3 यू नो उस टाइप से रहेंगे. ओके, सो ये जो टाइम मैनेजमेंट का दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, जिसमें आज अपने पहले कवर करेंगे द कंसेप्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइम मैनेजमेंट. ओके, तो चलो लेट मी अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि व्हाट एवरीवन अंडरस्टैंड्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट. Time management basically, तो बैठ के आंसर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. sir, time management basically priorities to the work ओके depend रहता है. ओके टाइम मैनेजमेंट नॉर्मल लाइफ के अंदर भी शुरू होता है कि भाई दिस इज माय टाइम टू गो टू ऑफिस, दिस इज माय ओके टाइम टू गो ओके टू होम एंड ऑल दैट. वर्क पे डिपेंड रहता है कि आई हैव टू complete this finish this in task in this. Okay, deadline good time good frame. good. This is one aspect of time management. Yes, good. And we need to set our priorities depend upon our time which Priorities, setting priorities in life is also part of time management. Good, very good. Or and there is a safe time that this time I'll give to my management, that if certain delays on that, so my Okay. means my commitment is not correct. Commitments. Okay, जो अपने commitments की बात कर रहे हैं. Very good. Keeping your commitments is one aspect of time management. Okay. और बहुत कॉमन टर्म है. Whatever you think, बिल्कुल आंसर करो. अच्छा, ये अपने समझ लो, अपने को पहचानना है. ओके, अपने को जानना है क्या मेरा टाइम मैनेजमेंट सही है या अच्छा है. ओके, या क्या इस पर्टिकुलर पर्सन का टाइम मैनेजमेंट अच्छा है. अगर ये मेरे को डिस्टिंक्शन करना है, ओके, अपने बोलते हैं ना कि भाई ये पर्सन है, ओके, ये फना पर्सन है, ओके, इसका टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है. ओके, ऐसा अपने बोलने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, so that we can say कि हाँ, इस पर्सन का टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है. Okay, this is the same question in a different way I am putting it. Right? Tell me that. he has to clear his mind that yeah, this kind of task he means management given to him, so he has certain criteria. I mean that criteria मतलब वो सारे steps complete करके वो Commitment, right? तो एक है कि he is able to keep his commitments. Okay, जैसे मैनेजमेंट ने बोला कि भाई ये रिपोर्ट मेरे को कल शाम तक चाहिए. ओके, तो वो उस टाइम तक दे दे, वो उसका कमिटमेंट था, और ही इज एबल टू कीप अप हिज कमिटमेंट, राइट. तो उस पर्सन को अपने बोलेंगे कि इसका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, जो अपना कमिटमेंट्स को रख सकता है, राइट. कमिटमेंट में और भी बहुत सारे आते हैं. ओके, और भी बहुत एस्पेक्ट्स आते हैं. टाइम पर बोलना, भाई चलो ठीक है 9 बजे आ जाओ, मीन्स 9 बजे आ गए सभी. ओके, या ये पर्टिकुलर टाइम तक कंप्लीट करना जो कमिटमेंट दिया था. ओके, ये सब कमिटमेंट्स में आते हैं. ओके, टाइमलीनेस. ओके, एक और ये एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ डिसिप्लिन भी टाइम मैनेजमेंट में आता है. क्या नहीं समझ में आया? सेल्फ डिसिप्लिन मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी ने बोला मैं सुबह को उठ के 6 बजे उठ के वॉक पे जाऊंगा. ओके,
अगर वो नहीं जाता है तो मतलब क्या, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, अपने यही बोलेंगे ना, राइट? तो अब ये इससे जुड़ा हुआ है जो पहले बताया, कमिटमेंट Yes. कैसे जुड़ा हुआ है? He is committing Of towards it. ourselves. To ourselves. That is a very important part, right? Time management means it's, you know, respecting and maintaining your commitments, okay? Not just to the world, but to all aspects of yourself and your life. Okay, ये बहुत important part है. Okay, good. This is one thing. Commitments, right? अपने और डिटेल में भी जाएंगे इसके बाद. कमिटमेंट्स को मेंटेन करना. अच्छा, और क्या, और क्या? ये स्टैंडर्ड है, आई थिंक एवरीवन विल एग्री ना कि ये तो सबको समझ में आता है ना. समझो अपने देखेंगे कि कोई आदमी बोलता है मैं 12 बजे आऊंगा, मैं तो 12 बजे आता ही है. उसने 25 बार बोला है अलग अलग टाइम पर, 25 अलग अलग लोगों को बोला हुआ है कि मैं 10 बजे आ जाऊंगा, तो 10 बजे आ जाता है. कहीं पर जाना है, यहाँ कहीं पिकनिक पे भी जाना है, वो बोलता है तो वो आ जाता है, राइट? तो आपने क्या बोलेंगे, ये आदमी पंचुअल, बिल्कुल पंचुअल, पंक्चुअल है और उसका टाइम मैनेजमेंट फैंटास्टिक है, ये अपने बोलेंगे, राइट? सो दिस इज वन एस्पेक्ट. ओके, कीपिंग कमिटमेंट्स टू योरसेल्फ आल्सो. हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत आदमी क्या होता है, जैसे मैं अगर बिजनेस चलाता हूं ना, तो माय कमिटमेंट टू माय बिजनेस इज 100%. ओके, बट बच्चे को बोला भाई आज अपने संडे को पिकनिक पे जाएंगे, अरे छोड़ना, मजा नहीं आता है, या भूल गए, या चलो उसी दिन दूसरे दिन सैटरडे को एक दूसरा मीटिंग अरेंज करते हैं, राइट? दैट इज ऑल्सो नॉट टाइम मैनेजमेंट. बिकॉज वो कमिटमेंट सिर्फ बिजनेस के लिए देना जरूरी नहीं है. बहुत आदमी, बहुत पर्सन जो है ना, वो ये डिस्टॉर्टेड सर्कल, विल कम टू दैट, एक सर्कल ऑफ लाइफ रहता है. ओके, वो पूरा इक्वली बैलेंस्ड सर्कल होना चाहिए, नॉट जस्ट वन और टू एस्पेक्ट. समझो, ठीक है ना? सो ओके, गुड. सो कमिटमेंट इज वन थिंग. ओके, देन देयर इज वन मोर एस्पेक्ट. ओके, और वो एस्पेक्ट ये है कि जैसे कमिटमेंट है, ओके, इसका कमिटमेंट अगर हो गया तो वो अच्छा टाइम मैनेज पर्सन गिना जाता है. ओके, और दूसरा एक एस्पेक्ट ये है कि दैट इज नोन एज द रिलेशनशिप. ओके, नाउ बहुत बार क्या होता है, कोई भी आदमी टाइम तो मैनेज कर लेता है, ओके, बट वो एकदम मिलिट्री जनरल जैसा रहता है. आपने सुनिए ना, मतलब बहुत सारे आर्मी के एक्स आर्मी पर्सन जो वहां से रिटायर्ड होके अपने सिविल लाइफ में आ जाते हैं, ओके, और वो क्या करते हैं, तूने 10 बजे बोला था, तू 10:05 आया, यू गेट आउट, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक, ऐसे बोलते हैं. मैं जानता हूं बिजनेस में भी होते हैं. ओके, आई नो ऑफ अ वेरी बिग ग्रुप हेड जिसने बॉम्बे से कोई पर्सन को, मतलब वो एक्चुअली वो जो दूसरा पर्सन था, ही वाज माय क्लोज फ्रेंड, एंड वो उनको आईटी का पूरा बरसों से सप्लाई करता था, बरसों से. ओके, उसको बॉम्बे से था तो वो पूरा आईटी का हार्डवेयर और ये वो सब वो उसी को देता था, लेटेस्ट सब जो भी था. ओके, वो अगर 10 बजे की जगह 10:05 को आएगा, सॉरी, आई हैड गिवन यू टाइम फॉर 10 and now it is 10:05. I'm sorry. I don't want to talk to you. ऐसा नहीं है कि उसके बाद 10 दूसरे आदमी आ गए, क्योंकि उसका 1 घंटे की मीटिंग थी. समझ लेना, 1 घंटे की मीटिंग थी, तो वो 10 से 11 बजे तक, वो इतना ज्यादा टाइम मैनेजमेंट है, तो 10 से 11 तक तो टोटली फ्री रखा होगा, ठीक है ना? अब वो फ्री था, उसके बावजूद भी 10:05 से उसने बोला नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं बाकी का अपना 55 मिनट्स ऐसे ही बैठूंगा, क्योंकि उसने तो पहले तो शेड्यूल को रखा नहीं है, उसका तो टाइम स्लॉट फर्स्ट क्लास है. ओके, सो नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज, आप देखेंगे अगर इसमें ये जो टाइम मैनेजमेंट इतना रिगरसली अगर इंप्लीमेंट करते हैं, तो व्हाट विल हैपन, विल ही बी एबल टू मेंटेन रिलेशनशिप विद दैट पर्सन? दैट पर्सन इज स्पेसिफिकली कमिंग फ्रॉम बॉम्बे. उसकी ट्रेन शताब्दी उस टाइम पर आई डोंट नो कुछ आ रहे थे, तो उसे 9:30 में आती थी, और वो 9:30 की जगह पर थोड़ा लेट हो गई. समथिंग बियॉन्ड हिज कंट्रोल. ओके, नथिंग. ओके, सो अब उसका बैकग्राउंड में क्या हुआ, वो बंदे ने बोला यार छोड़ दे, अभी मेरे को इससे डील ही नहीं करना है. इतने वर्षों से भी था डीलिंग में भी. ओके,
इट वॉज अ बिग स्ट्रेस फॉर हिम। बोल रहा है वैसे भी यार इसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने में मतलब मैं आई एम जस्ट नॉट एबल टू मेंटेन दैट रिलेशन, राइट? तो क्या होगा, दिस इज अ सेकंड एस्पेक्ट ऑल्सो कि टाइम मैनेजमेंट शुड बी डन, ओके, बट विथ अ बैलेंस। ओके, बैलेंस मीन्स अ ह्यूमन एंगल जिसको बोलते हैं। ओके, बहुत बात ये जैसे अपने कोई बहुत लोग होते हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब कैसे, सुबह को 7 बजे उठेंगे, कसरत करेंगे, योगा करेंगे, दिस करेंगे, दैट करेंगे, बाद में नहा धो के बैठेंगे, ओके, फिर रात को 10 बजे आएंगे तो सो जाएंगे, सब कुछ होगा, ओके, एवरीथिंग इज दैट वे। नाउ ये लोग क्या हो गए कि भाई ओके देयर इज अ पार्टी, ओके, उनके घर पे बच्चे ने कुछ अच्छा अचीवमेंट किया है, फैमिली वाले आए हुए हैं, ये है वो है, 9:30 बजे से पार्टी शुरू हो गई, मेरा 10 बज गया, मैं जाके सो। ओके, नाउ इज दैट ऑल्सो गुड? दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। सो व्हाट इज हैपनिंग इज यार ये तो he is not considering the sentiments of the child who has got that, okay, and वो अपना टाइम मैनेजमेंट को बचाने के लिए, see there कोई भी आदमी में there is certain amount of flexibility, okay, वो अगर आधा घंटा कम सोएगा ना तो उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, okay? हाँ, बट ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि एवरीडे वो 12 बजे तक जाग रहे, that is fair, but once in a while it's okay, right? So ये एक दूसरा second aspect है balancing of टाइम, कमिटमेंट्स एज वेल एज रिलेशनशिप, ओके। और एक थर्ड एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, दैट इज अबाउट स्ट्रेचिंग योर पोटेंशियल और कैपेसिटी। ये तीसरा एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ही जाके अगर ये तीनों एस्पेक्ट्स को आपने बैलेंस किया ना, तो ही जो आपने अपने आप को टाइम मैनेज्ड साबित कर सकते हैं, और यू कैन कंसिडर योर सेल्फ दैट यू आर वेल टाइम मैनेज। अभी एग्जाम्पल ये देता हूं मैं, व्हाट एग्जैक्टली डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस थर्ड पार्ट, स्ट्रेचिंग योर पोटेंशियल। ओके, देखो हर आदमी में एक क्षमता रहती है, कैपेसिटी रहती है, ओके। कैपेसिटी मीन्स क्या, कोई भी चीज करने की, वो एक मतलब एक इट्स अ बायोलॉजिकल एंड जिसको क्या बोल सकते हैं, अपब्रिंगिंग के हिसाब से और स्कूलिंग के हिसाब से और एनवायरमेंट के हिसाब से अपने खुद की एक कैपेसिटी अपने बना लेते हैं। एक सर्टेन तक कैपेसिटी है हर एक आदमी की, आज के तारीख में एक एक कैपेसिटी रहती है। क्या वो अपनी कैपेसिटी पूरी यूटिलाइज कर रहा है? जैसे अपनी एक गाड़ी रहती है, ओके, हर कार की एक कैपेसिटी रहती है। कैपेसिटी मतलब कि ये 170 पर भागेगी, राइट? यू नो स्टैंडर्ड गाड़ी जो रहती है, कोई 170 का काटा रहता है, कोई 200 का रहता है, कोई 250 का रहता है, अलग अलग कार्स के ऊपर रहते हैं, राइट? तो क्या हर बार अपने वो 250 पर भगाते हैं, या हर बार वो 170 इवन फुल क्लियर हाईवे है तो भी क्या अपने उसको फुल काटे पर भगाते हैं? भगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं भगा सकते, अपने भगाते नहीं है, सेफ जोन नहीं है, अपने भगाते नहीं है। आर यू गेटिंग दैट? राइट? सो उसी टाइप से अपने हर एक आदमी में एक क्षमता रहती है, कैपेसिटी रहती है, बट बहुत सारे कारणों के वजह से अपने उसको फुल यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं। ओके, दिस इज द लिमिटेशन, दिस इज योर सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन। ओके, आर यू गेटिंग दैट? नाउ योर टाइम मैनेजमेंट से इससे क्या लेना देना? योर टाइम मैनेजमेंट शुड बी सच दैट यू आर नॉट ओनली कीपिंग योर कमिटमेंट्स, you are not only maintaining your relations but also extracting the greatest mileage from yourself। मतलब अपनी कैपेसिटी को फुल्ली यूटिलाइज कर। देखिए इस तीनों में से जो है ना कॉम्प्रोमाइज करेंगे ना तो बहुत आसान है। से फॉर एग्जांपल मेरे को टाइम मैनेज करना है, ओके, तो मैं क्या है, एक अपॉइंटमेंट रखा, उसके और दूसरे अपॉइंटमेंट के बीच में 1 घंटा रखूंगा, तो क्या होगा? टाइम मैनेज बहुत इजी होगा, मैं हर कमिटमेंट दे सकूंगा कि नहीं? क्यों भाई, ये गैप ऐसा है, मैंने मेरे को तो अपना पंक्चुअल रहना ही है, ओके, और मैं 1 घंटा, अभी 1 घंटा क्यों रखता हूं? कभी मेरे गाड़ी में पंचर हो गया तो, मैं पहुंच नहीं पाया तो 1 घंटा तो चाहिए मेरे को, राइट? अब ये सोच है तो कभी मैंने पंचर की वजह से कभी होगा, विच विल हैपन मे बी 1 in 1000 days,
2 साल में एक बार जब मैं वहीं जाना है मेरे को 10 बजे, और वो 10 बजे ही मैं पहुंचने की जगह पर वो पंचर हुआ, इसीलिए मैं 10:15 बजे पहुंचा। तो वो एक 1000 टाइम्स की वजह से मैंने क्या किया, 1000 टाइम्स आई हैव वेस्टेड 1 आवर। आर यू गेटिंग दैट? जैसे आज मेरे को यहाँ 9 बजे आना था, राइट? तो मैंने क्या किया, मैं घर से 8:45 बजे निकला। अगर आपने देखा जाएगा तो इट इज पॉसिबल, ये मेरा कैलकुलेशन क्या था कि 8:45 बजे से निकलूंगा, सुबह सूरत में ट्रैफिक नहीं होता है तो 15 मिनट में आराम से आता। अगर दोपहर को 11 बजे होता तो शायद 8:45 की जगह या 10:30 की जगह, अब 11:15 की जगह 10:30 रखना पड़ता, हाफ एन आवर गैप रखना पड़ता, ठीक है ना? अभी मैंने 15 मिनट का गैप रखा। ओके, नाउ अगर मैं यहां पर 8:30 बजे आ जाता तो मैं बैठा रहता, आधा घंटा टोटल टाइम वेस्ट। ओके, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि क्या आपने, अच्छा वहां पर अपने जैसे शेड्यूल मीटिंग करते हैं और उसके बीच में फिर व्हेन वी आर डूइंग नथिंग, तो अगर अपने जो टाइम यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं तो अपने क्या कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी को अंडर यूज कर रहे हैं। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको ये तीनों चीज को बैलेंस करना है। जैसे मिलिट्री वाला जो बिजनेसमैन था, उसने क्या किया, अपना 55 मिनट्स वेस्ट कर दिया, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट चलता है, तो वो आया नहीं, तो उसने दूसरा अपॉइंटमेंट तो रखा ही नहीं होगा ऑब्वियसली, तो उसने वो 55 मिनट्स वेस्ट किया, विच इज नॉट राइट। अच्छा, प्लस काम उसका ही था ना, इसलिए उसको बुलाया था। अब उसका काम क्या था कि उससे पूरा फाइनलाइज करना था, एक न्यूज सेटअप करने के लिए। अब क्या होगा, अब वो बॉम्बे से कब आएगा, हो सकता है 2 हफ्ते के बाद, तो वो पूरा प्रोजेक्ट जो जिसके लिए उसको परचेसिंग करना था या जो भी प्लानिंग करना था, जो समझना था, वो पूरा 2 हफ्ता डिले हुआ। ओके, सो डिड ही यूटिलाइज हिज कैपेसिटी? नो। तो इवन दो ऐसा ऑन पेपर या ऐसे लोग बोलते यार वो आगे बहुत इंटरेस्टिंग टाइम डजंट वर्क दैट वे। ओके, ये तीनों को बैलेंस करना इज द रियल टाइम मैनेजमेंट। ओके, सो आर वी क्लियर? हाँ, time management is not just being strict or disciplining your commitments, it is being disciplining or keeping your commitments, plus keeping your relationship, plus extracting maximum from your own self. Okay, तो ये concept से अपने शुरू करते हैं। Okay, so अब इससे next concept अपने जाते हैं कि what is time? What is time? ये सब भी कंसेप्चुअल लेवल है, ये इसीलिए मैं आज डिस्कस कर रहा हूं कि ये कंसेप्चुअल लेवल क्लियर हुआ ना, तो अपने पूरी सीरीज में जो जो करेंगे ना, उसमें ये सारी चीजों का रेफरेंसिंग होगा। ओके, तो ये कंसेप्ट, लेट मी, यू हैव टू बी क्लियर एज टू व्हाट एग्जैक्टली इज टाइम। व्हाट इज टाइम? टाइम को किस नजरिए से अपने देखते हैं? टाइम किसी के लिए नहीं रुकती है। टाइम किसी के लिए नहीं रुकती है। दैट्स अ वेरी 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 पावरफुल स्टेटमेंट। ओके, इट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टाइम। यस, इट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टाइम, है ना? वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, ऐसे बड़े बड़े डायलॉग बॉलीवुड के आते रहते हैं। गुड, और क्या अपने क्या, यहाँ मैनेजमेंट के पर्सन है। ओके, वी आर ऑल इनटू बिजनेस, सो वी आर मैनेजिंग बिजनेस। ओके, so from that viewpoint अगर देखेंगे तो what is time? See, अपने लोगों ने एक स्टेटमेंट दिया, time is to a business, from the business viewpoint, time is a resource. Okay, when I say this, what do we understand? Okay, what is a resource? Resource क्या होता है? नहीं, what is a resource? can use it to fulfill something. Yes, resource अपने लिए क्या है? एक इनपुट है जिसको यूज करके अपने एक डिजायर्ड आउटपुट ला सकते हैं। ओके, रिसोर्स कोई भी इज एन इनपुट जिसको यूज करना, मतलब जिसको प्रोसेस करके अपने एक आउटपुट ले जा सकते हैं। ओके, दिस इज अ रिसोर्स। सो टाइम इज अ रिसोर्स। ओके, समझ में आया? अब टाइम, अच्छा, और दूसरे कौन से रिसोर्सेज हैं जो सुने हुए हैं अपने? Money, manpower. मैन पावर, मनी इज द बिगेस्ट रिसोर्स जो सब लोगों को पसंद है।
okay, you can use money, process it. Process मतलब क्या? बिजनेस में यूज करेंगे, that is the process, and convert it to your desired output. What is the desired output? अलग अलग चीज हो सकते हैं. कोई मनी देकर हॉलिडे भी कर सकता है, कोई मनी देकर बिजनेस में लगाकर he can generate profits. Okay, so money is a resource. Okay, all the raw materials, they are all resources. Okay, the minerals जो अपने खनिज और material. yes, right, ये 5 जो अपने okay, machines are resources. Okay, so time is also a resource. Okay, unfortunately most of the people do not recognize that as a resource. It's a very common thing. Okay, वो कैसे मैं प्रूफ देता हूँ कि कैसे नहीं होता है. मतलब how people don't look at time as a resource. अब the whole problem start वहीं होता है कि टाइम को कोई रिसोर्स की तरह से नहीं ट्रीट करता है, नहीं देखता है, एंड द होल प्रॉब्लम स्टार्ट्स विद दैट. कोई प्रूफ दे सकेगा कि ये मैं ये स्टेटमेंट को कैसे प्रूव कर सकता हूँ कि हाँ यार ये ऐसी बात है क्या, मैं तो ध्यान में नहीं था यार, टाइम रिसोर्स है. मतलब जिंदगी टाइम चला जाता है, उसके बाद उसको पता चलता है कि मुझे ये अचीव करना था, जो चीज रिसोर्स वो किसी के माइंड में नहीं है, जहन में नहीं है कि साला ये रिसोर्स है. ये प्रूव करने के लिए आप कोई अपना डे टू डे एक्शन बताओ, या डे टू डे कुछ स्टेटमेंट बताओ, या डे टू डे कोई करंट बताओ जिससे प्रूव होता है कि हाँ यार ये बात सही है. तो ऐसा है कि हम लोग कभी कुछ काम करते हैं, मान लो कि हमने 2 घंटे में कोई गेम खेली, हाँ, उसी टाइम में हम कुछ ऐसा कर सकते जो प्रोडक्टिव हो सकता है, जिससे Correct. हम पैसे कमा सकते हैं. Correct. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है कि पैसा कमा सकते थे. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, नाउ इसका एग्जांपल मैं देता हूँ. अपने ऑफिस है, ओके, सभी लोग ऑफिस पे आते हैं. ओके, अभी आपको पता चलता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो क्या करता है, रोज ऑफिस में पेन, बॉल पेन, स्टेशनरी ये वो लेकर घर पे ले जाता है. इजी है ना, अपना हर एक कोई बैग लाता ही होगा, तो थोड़ी स्टेशनरी बच्चों को काम आती है, पेंसिल, रबर, फुटपट्टी, स्टेपलर, वो लेकर चला जाता है. हाँ, अपने को पता चलेगा कि ये आदमी ऐसा कर रहा है, अपने क्या करेंगे, मैनेजमेंट क्या करेगी, स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी नहीं लेगी, उसको फायरिंग देगी, यहां तक कि फायर भी कर सकती है नहीं कर सकती है. राइट नाउ व्हाट इज दिस पर्सन डूइंग? दिस पर्सन इज स्टीलिंग योर रिसोर्स. राइट, वो अपना एक रिसोर्स है, ऑफिस का रिसोर्स है ना, स्टेशनरी ये वो सब रिसोर्सेज है. okay? वो रिसोर्स को वो स्टील कर रहा है ना, और वो रिसोर्स को स्टील किया तो एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन इज टेकन. राइट, अपने बहुत बार देखे हैं कि हर एक बॉस के पास या हर एक एम्प्लॉय के पास कोई एक लेबल रहता है, खपाऊ, नस खेचू, ऐसे बहुत सारे ऐसे लेबल्स देते हैं. वो आदमी आके बैठ जाते हैं और बैठ के गप्पा मारते हैं. अब वो सामने वाला जानता भी नहीं है, चाहता भी नहीं है कि यार ये दिमाग चाट रहा है. उसका 2 घंटा खा गया, स्टील कर गया. डू वी टेक एक्शन? ठीक है, क्या करेगा, वो आया अभी सभी वो अपना टाइम. इट हैपेंस एवरीवेयर ऑल द टाइम. उसका कॉस्ट अपने गिनते ही नहीं है. कितने ऐसे कस्टमर्स हैं, आप लोग जो मार्केटिंग में जाते हैं, कस्टमर बुलाएगा, आ जा करना है, कुछ डीलिंग करना है, या ये है, या पेमेंट के लिए जा रहे हैं, या कुछ भी. वो कस्टमर बुलाता है, फिर आपको बिठाएगा और 2 घंटे की इधर उधर की बात करेगा, काम की बात नहीं करेगा. Do we ever consider the total cost that we have paid to that customer? अपने क्या मैक्सिमम कंसिडर करेंगे? मैं 6 किलोमीटर चल के गया तो आने जाने का 100 रुपया मेरा खा गया. आपका टाइम, उसका कीमत अपने लोग कभी. दिस इज द कंसेप्ट विच इज द रीजन जो अपने को टाइम के प्रति थोड़ा सा कैजुअल कर देता है, बिकॉज वी डोंट लुक एट इट एज अ रिसोर्स इटसेल्फ. राइट, अगर अपने जस्ट कॉन्शियस हो जाए ना कि टाइम, जैसे बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, टाइम इज मनी, बोलते हैं ना,
टाइम इज मनी। उसका क्या मतलब है? सुना है, बहुत सारा है, SMS आया, फॉरवर्ड किया है, सब कुछ किया है, लेकिन वो रियल कंसेप्ट जो अपने माइंड में बैठ गया ना कि टाइम इज मनी, अगर मैं खुद का टाइम वेस्ट कर रहा हूं, मैं इफेक्टिवली पैसा फेंक रहा हूं। अपना 10 रुपया अगर सोफे के पीछे गिर गया है या अपने छज्जे पर गिर गया है, तो अपने डंडा लेंगे, वो डंडे पर चिंगम लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आइडिया लगा लगा के वो 10 रुपया निकाल देंगे और उसके ऊपर 1 घंटा वेस्ट कर देंगे। At what cost to your What is the cost of retrieving the 10 rupees? That we don't get. मेरा तो 10 रुपया बच गया। Are you getting that? You know, so that is why we never look at time as a resource. Okay, and this is a very big issue, जिसकी वजह से अपने sensitive नहीं होते। We are not sensitive towards the value of time. आजकल जितने SMSs होते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे ख्याल होते हैं, उसका अगर सिर्फ 1% अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर देंगे ना, यू बिकम अ ग्रेट मैन। ओनली 1%। दिस इज अ फैक्ट। क्योंकि अपने SMS होता है, फटाक करके कॉपी पेस्ट फॉरवर्ड टाक टूक करके एकदम हो जाता है, बट वी डोंट एक्चुअली थिंक ऑल्सो कि भाई ये क्या मेरी जिंदगी में मैं अप्लाई कर रहा हूं, फॉरवर्ड करके वाओ गुड वन, ये वो, उसके लिए अपने श्योर फॉरवर्ड करते विदाउट थिंकिंग कि दिस इज फॉरवर्डेड टू मी for my understanding, for my self improvement, right? So this is a very important concept that time should be treated as a resource. अच्छा, ये resource और दूसरे resource में फर्क क्या है मालूम है? ये भी समझना बहुत जरूरी है। जैसे मनी इज अ दूसरा resource, right? टाइम इज अ दूसरा resource, right? इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? Yes, it is irreversible. वो अगेन दैट डायलॉग्स, राइट? वक्त गुजर जाता है, फटफट नहीं आता है, ऐसा वैसा करके बहुत सारे डायलॉग्स होंगे, अपना हजारों मिलेंगे, सब पिक्चर होंगे, राइट? व्हाट For this time resource we have not to pay. yes, that is another beautiful characteristic. Yes. One, time is irreversible. Once lost, it cannot be gained. Money, is it irreversible? Money, is it irreversible? Money, is it reversible? मनी रिवर्सिबल है ना, कि भाई इसने चोरी किया मेरा पैसा, मैं इसको मार के मुड़ के कुछ भी करके मैं वापस ले सकता हूं कि नहीं मनी, राइट? सो मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर रिवर्सिबल, लेकिन इसने 2 घंटा मेरे ले लिया, अब मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं कर सकता, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम and the other resource, right? It is irreversible. Okay, so because of this being, it is even more dangerous to waste this resource. Okay, okay, that is one thing. दूसरा इन्होंने जो बोला है, बताइए वो। It's free. It is free. Okay. Now ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। Now time is the only resource. इसका फ्री का एक थोड़ा सा देता हूं, जो क्या है, हर आदमी को उतना ही मिलता है। That is God's socialism. सोशलिज्म में क्या होता है? जो ट्राई करते हैं अपने सोशलिस्टिक स्टडी में, सिस्टम में, कि सभी को इक्वल हो। ओके, गॉड हैज गिवन दैट, दिस इज वन रिसोर्स गॉड हैज गिवन। मनी हैज गिवन इक्वल नहीं। कोई पैदा होता है बहुत बड़े फैमिली में, बहुत अमीर होता है, ये होता है, सारे रिसोर्सेज उसके घर पे होते हैं, कोई आदमी बिल्कुल गरीब रहता है। नाउ दिस इज वन रिसोर्स विच गॉड हैज गिवन, ओके, इक्वल, ओके, एंड वो गेम करने के लिए, गेम, यू नो, सी द ब्यूटी अबाउट गॉड्स, ये थोड़ा फिलोसॉफिकल एंगल है, ब्यूटी अबाउट गॉड्स क्रिएशन। वो क्या करता है, एक ये रिसोर्स दे दिया, इक्वल दे दिया, कुछ तो देना पड़ेगा ना, इक्वल, एंड ही गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी कि इसका सदुपयोग करके तुम दूसरे रिसोर्सेस को नीचे, इनइक्वालिटी को कम कर सकते हो। दैट इज द गॉड्स गेम। जैसे अपने मोनोपोली करते हैं ना, मोनोपोली खेलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या मोनोपोली बोलते हैं ना, है ना, मोनोपोली गेम खेलते हैं। तो मोनोपोली में क्या होता है, पहले बैंक सबको इक्वल मनी देती है ना, बैंक देती है सबको, फिर वो गेम खेलते हैं। अब गॉड ने मनी तो इक्वल नहीं दिया, लेकिन टाइम सबको इक्वल दिया। एंड आई टेल यू, आप लोगों के सामने ही होंगे बहुत सारे हजारों एग्जांपल्स होंगे, ओके, जहां पर
they had zero money, they started with zero money, okay, but utilized their time in the best possible way and they came up to a level जो कंपेयर नहीं किया जा सकता कोई दूसरे से. अपने प्रेसिडेंट, पास्ट प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम, he was of that, Yes. है ना? He was selling papers. He was selling newspapers, okay, and he rose to the level of a president, okay. हजारों न्यूज़पेपर बॉयज होंगे with that same resources, right? Did they all become presidents? No. What is the difference? He utilized, अपने बहुत बार इसको क्या है, दे देते कि ये लक दे देते हैं, ये दे देते हैं, बट उसकी अगर जिंदगी में देखेंगे ना, लक के अलावा there were many other elements. He utilized that, वो स्ट्रीट के ऊपर स्टडी करके he went and went and went and went ahead, right? So utilizing the other resource, the common resource, in the best possible way can lead to miraculous results, right? So this is one of the aspects of time. Time as a resource is a social equalizer and God has given that. It's very simple. It's up to you to utilize it or not to utilize it. You know, बहुत बार अपने पान के गल्ले पर बैठते हैं, ये कहते हैं यार मजा आ रहा है, बस और कुछ नहीं. Are we doing something to improve my status, improve my level? कोई स्टडी करेगा, कोई दूसरा एक्टिविटी करेगा, कोई दूसरा पार्ट टाइम जॉब, एनीथिंग whichever is going to improve your level. Many people do it, many people don't do it. So that is the utilization of time. Are you getting that? So time is a resource, it is irreversible, okay, and it is uniform. That is the beauty part of it. Equally distributed. Okay. So now ये concept से लेकर अपने इसको देखेंगे. What is time management? We have covered. Yeah, I'm just recapping. Okay. What is time management? We have considered time management is the best utilization of resource. Okay. Now resource limited. Okay. It is limited. You don't have unlimited like other resources. You know, बैंक ने पैसा दे दिया तो पूरा मालामाल हो गए. Okay. This is a limited resource. Okay. Equalizer है जो मैंने बात किया, and it is irreversible. Okay. Now एक ये समझने वाले Western और Indian philosophy is also responsible for our own, you know, concept to time management. जैसे मैंने बताया ना अपना concept में, this is one of the reasons जो बोल सकते हैं at the background अपने upbringing में. Okay. वो क्या है? See अपने Indian और Eastern culture में और Eastern इस part में अपने generally क्या होते हैं? We believe in birth, rebirth and all that. Okay. Yes. तो time is cyclic. Okay. Time cyclic होने की वजह से we don't have a sense of urgency. Means it's unlimited है ना. Urgency कब होता है? भाई मेरे को 3 घंटे ही हैं, तो ये टाइम फिनिश करना है. अगर मैं बोल दूंगा कि आपको अगले 15 दिन में ये रिपोर्ट बनानी है, ओके, और दूसरी ये रिपोर्ट बनानी है, ये दूसरा यही सेम रिपोर्ट आपको बनानी है विद इन नेक्स्ट 3 days. ओके, व्हाट विल हैपन? वो मूर्स लॉ है, वर्क एक्सपांड्स टू फिल अप द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन. वो लास्ट 15th डे पर भी आप उतना ही हेक्टिकली करेंगे रिपोर्ट फिनिश करने को जितना वो 3rd डे पे करेंगे. ओके, बिकॉज लिमिट नहीं है ना. ओके, अगर आपको पता चलेगा कि ये काम कंप्लीट के लिए मेरे को 3 साल है, तो क्या करेंगे? हाँ, नो प्रॉब्लम, 3 साल हो जाएगा. नहीं, okay, so you will be relaxed, you are not bothered about wasting it or using it, right? So that is why अपने Indian philosophy, you know, they say है कि time is unlimited. अपने कितनी बार सोचते हैं, अरे इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तो मैं ये बन जाऊंगा, ये जन्म की तो खत्म. ओके, अभी वेस्टर्न वाले लोग ना ये नहीं करते. आप लोगों ने देखा होगा अमेरिका में आपके कोई रिलेटिव या फ्रेंड ये होंगे ना, तो इवन व्हेन दे आर 45, ओके, वो अभी तक सपोजिंग क्या है, अकाउंट्स और कॉमर्स में रहा होगा, 45 वाले मेरे को डॉक्टर बनना है, 45 के ऊपर रजिस्टर करते हैं, डॉक्टर बनता है, 55 पे डॉक्टर बनते कंप्लीट करते हैं. बहुत केसेस मैं खुद जानता हूँ. ओके, यहाँ डॉक्टर होगा, वो बोलेगा मेरे को यार कंप्यूटर में जाना है यार, वो ग्रेजुएट करता है, मतलब वो असाइंस टू अ कॉलेज, ओके, एट 50 ऑल्सो, और ग्रेजुएशन करके फिर वो कंप्यूटर की नौकरी करता है. मेरे खुद के कजिन वगैरह भी हैं ऐसे. हम लोग, मैं बहुत बार बोलता यार, उसने यहाँ से इंजीनियरिंग किया, वहां गया, उसके बाद में डॉक्टरी किया, 4-5 साल किया, एंड नाउ क्यों? उनको माइंड में एक बैठ गया अभी कि जो करना है इसी जन्म में करना है.
आपने क्या बोलेंगे अगले जन्म में मैं डॉक्टर बनने वाला, क्या प्रॉब्लम है, अनलिमिटेड टाइम. सो दैट इज एक ना द बैक ऑफ आवर माइंड कि जो है टाइम तो इज अनलिमिटेड, देखो यू नो. एंड वेस्टर्न दे हैव अ यूनिफॉर्म लीनियर फॉर्म, लीनियर टाइम होगा, जो है इसी जन्म में करना है वो कर लो, यू नो. सो दे एंजॉय आल्सो टू द मैक्सिमम, यू नो, द पार्टी और दिस और दैट. अपने बोलेंगे यार अभी नहीं, आराम से यू कैन डू इट एनी टाइम. सो दैट इज आल्सो वन फैक्टर, यू नो, कि अपना अपब्रिंगिंग. या सर इंडिया में कुछ ऐसा भी होता है ना कि कुछ पीपल के पास फिनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते, ठीक है, तो वो कुछ करना चाहते हैं तो भी नहीं कर सकते, ठीक है. सपोज मैं सोचता हूँ कि मैं भी डॉक्टर बन जाऊँ, फिनेंशियली मेरी करेक्ट स्ट्रांग नहीं है तो मैं नहीं कर पाता हूँ. वो ये भी एक फैक्टर है. या दैट इज अ फैक्टर ना, वही तो बोला ना. वो फैक्टर वेस्टर्न में नहीं लड़ेगा. Exactly, that is what I'm saying. वो see there are so many factors. एक तो पहले तुमको मेंटली प्रिपेयर करना है अपने आप को कि मेरे को डॉक्टर बनना है, एंड बनना है तो इट डजंट टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम. इट टेक 4 years, 5 years, 6 years. 6 years out of 60 years, 70 years of your age, 6 years is normal, not a very big thing. अपने पहले ही क्या अपना माइंडसेट ही रहता है कि ठीक है ना ये सर नहीं बना, इस नेक्स्ट टाइम अच्छा ये बन जाएंगे नेक्स्ट जन्म में, बिकॉज वी स्ट्रांगली बिलीव इन दैट, यू नो. सो दैट इज वन अदर you know viewpoints है. Okay, now balancing the following जो मैंने बताया था. Okay, ensuring the fulfillment of commitments. Okay, then maintaining relationships and realizing your potential, right? That is ensure the optimum utilization of your time, juggling the tasks schedules to optimum use. Okay, and then an element of stretch, ये भी होना जरूरी है. You know, जैसे कमिटमेंट फिल करना है, मैं सर ये रिपोर्ट तो 6 दिन में ही बना सकता हूँ, 6 दिन से ज्यादा नहीं, अभी 6 दिन से कम में नहीं बने. मैं इंटरनली जानता हूँ कि अगर बैठूंगा तो आराम से 3 दिन में रिपोर्ट बन जाएगी, राइट. तो अगर मेरे को कमिटमेंट के ऊपर, जो जैसे मैंने फर्स्ट बताया था पॉइंट कि कमिटमेंट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैंने इस एलिमेंट ऑफ स्ट्रेच नहीं दिया, मैं जानता हूँ कि 3 दिन में मैं बना सकता हूँ, मैं जानबूझ के 6 दिन ले लूंगा कि नहीं यार अपने तो कमिटमेंट क्या है, किसी भी तरह से कमिटमेंट तो फेल नहीं होनी चाहिए. In fact, a good time manager, what he will do is, he will say, "I'll finish in 2.5 days." क्यों? क्योंकि जो मैं जानता हूँ कि 3 days में होने वाला है, internally, it's an internal dialogue. जिस दिन को मैं compress करके 2.5 days तक लाऊंगा तो क्या होगा? मैं अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहा हूं ना, अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहा हूं, राइट. सो दैट एलिमेंट ऑफ स्ट्रेच. अच्छा, एक ये समझ लेना कि जो भी अपने काम करते हैं ना, इट इज एक्चुअली इंप्रूविंग योर ओन कैपेसिटी. समझ लेना. अपने क्या देखते हैं बहुत बार, तो कंपनी के लिए ना, हाँ जरूर कंपनी के लिए है, बट इन इफेक्ट एक्चुअली वो आपकी खुद की कैपेसिटी को बढ़ाता है. अपने बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन देखे हैं, गवर्नमेंटल एम्प्लॉयज देखे हैं कि वो कुछ काम करना प्रेफर ही नहीं करते हैं, आराम से आएंगे 6 बजे बैठ के झूले पर बैठ जाएंगे आराम से, बस खत्म. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, उनकी कैपेसिटी खत्म हो गई. बहुत लोग आई थिंक अपने इसमें से 2-3 जन तो है, कोई रिलायंस में से है. रिलायंस में से कौन कौन है, कोई है ना अपने टीम में से था कोई, 5 रिलायंस के हैं. ओके, अब रिलायंस का क्या रहता है, इतना स्ट्रेच देते हैं कि यू आर फोर्स्ड टू रन. अच्छा, उसमें रिलायंस का तो फायदा हो ही गया, बट अपना फायदा ये हो जाता है कि अपने को दौड़ने की कैपेसिटी होती है. अगर मैं 10 की स्पीड पे पहले दौड़ रहा था और मेरे पीछे शेर आया और मैं 15 की स्पीड में भागने लगा, तो मेरी कैपेसिटी 15 की हो गई ना. सो दैट रिलायंस इज दैट शेर जो आपको दौड़ाता है. एंड वंस यू आर देयर, तो आपकी कैपेसिटी बढ़ गई, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है. ओके, सो दैट इज वन थिंग. सो एलिमेंट ऑफ स्ट्रेच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अच्छा, नाउ जो मैंने बताया था कि इसको ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में ये अपने को करना है. What are these are the broad 6 कैटेगरीज ऑफ 6 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. नो, जैसे अगर अपने एक में बहुत अच्छा टाइम मैनेज करते हैं, एक में कमिटमेंट्स देते हैं, ओके, एक में रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं. कस्टमर से रिलेशन मेरे को मेंटेन करना है, घर पे नहीं. घर पे माँ बाप से अपने बात भी ठीक से नहीं करेंगे, मेरे को टाइम नहीं पाए, और कस्टमर बैठा है एकदम, वो टाइम खा रहा है आपका, सब कुछ वेस्ट कर रहा है, लेकिन आप उसको नहीं, ओके, पोलाइट हो रहे हैं, अच्छा है. यू आर मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप विद द कस्टमर, but don't even bother to maintain relation with a father or a child or a wife. Okay, now that is something. We have financial, then physical and health,
देन फैमिली एंड होम, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये। ओके, देन मेंटल एंड एजुकेशन। बहुत बार क्या होता है कि आपने देखते हैं एक बार प्रोफेशन में आ गए ना, फिर मेंटल ग्रोथ को साइड पे रख देते। नो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कैरियर में आगे बढ़ते जाना है ना, योर माइंड हैज टू ग्रो। अगर आप एक ही चीज कर रहे हैं, समझ लो कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर, ओके, 10,000 की नौकरी पर लगा है, ओके, आज 10,000 का 2 साल के बाद में 12 हो गया, 10% बढ़ेगा, ओके, 2 साल के बाद में 12 हुआ, फिर हुआ 15 हुआ, ओके। अब क्या वही काम जो कोई 10,000 वाला कर सकता है, उसी के लिए ये 15 दे रहे हैं पहले। आफ्टर 5 years व्हाट विल द बॉस थिंक कि मेरे को 10 वाला मिल रहा है तो फिर मैं इसको क्यों रखूं? ओके, आउट मीन्स नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली बोलेगा यार इसको 15 दे रहे हैं, जब आप आम जाम में 10,000 में मिल रहे, फिर मैं क्या को 15 दूं? फिर वो प्रॉब्लम्स आ जाएंगे उसके काम में, ये होगा, रिलेशन खराब करके बोलेगा भाई तू भाग जा, तू तेरा काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अगर अपने ग्रो होते हैं, ऑपरेटर से ज्यादा होकर अपने मैनेजर बन गए, मैनेजर तो 15 में नहीं मिलेगा ना, तो बॉस बोले नहीं यार ये आदमी है पूरा टीम को मैनेज कर रहा है, ही इज गुड। एंड दैट इज व्हाई दिस मेंटल ग्रोथ जिसके साथ एजुकेशनल